Please repeat. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। Hare Krishna. So let's do Mangalacharan also, and then we'll do a little recap. Manish Prabhu, are you watching the message in the chat? Is They can hear you. everything okay there? Okay. Come on, man. Okay, let's do Mangalacharan. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padkamlam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitantam Sajivam Savadaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Shri Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarobhyascha Kripa Sindhuva Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bhuter Mahadbhir Yaima Puro Vibho Nirmaya Shete Yadamosha Purusha Bhungte Gunansho Dashasho Dashatmakam Solank Srishta Bhagavan Vachamsi Me Shri Krishna Sharanam Sharanaagatam Katha Amritam Satat Pibatam Bhakti Vedanta Marg Panthanam Sarvalok Rishi Deva Janma Prasannam Sarvalok Rishi Deva Janma Prasannam. Hare Krishna, Prabhuji and Mataji. Please pray for me. May the right words are spoken at the right time. May we are all truly able to glorify the Supreme Personality of Godhead, Srila Prabhupada, Srila Guru Maharaj, and serve all the living entities.
हरे कृष्णा. So yesterday we concluded. Where did we conclude yesterday? Gajendra realized that this situation, ये जो मेरा situation है, ये प्रोविडेंस का अरेंजमेंट है. अकस्मात उनको नॉलेज हुई. बहुत देर तक उन्होंने ट्राई किया, फाइट करते रहे, बट अकस्मात अपार यन आत्म विमोक्षणे चिरम. बहुत देर तक जब वो अपने आप को बचा नहीं पाए ग्राह के उससे, तद्भव इमाम बुद्धिम अथ अभ्युपद्यत. उन्होंने बुद्धि से डिसीजन लिया. he made a decision कि ये जो मेरा संकट है ये हो ना हो, दिस इज अरेंजमेंट ऑफ प्रोविडेंस. ग्राहेण पाशे न विधातुरावृतो अभ्यम तम च यामि परम परायणम. तो उन्होंने कहा कुछ हो ना हो, ये जो ग्रह का पाश है ये विधाता का अरेंजमेंट है. कुछ विधाता का अरेंजमेंट है ये, ताकि इस मगरमच्छ ने आके मेरा पैर पकड़ लिया है और अब मैं वही करूंगा जो करना चाहिए. और वो ये है कि मैं जो परम परायण है, जिनकी शरण में भगवान शिव और ब्रह्मा और बड़े बड़े देवता जिनकी शरण लेते हैं, ऑल द रियलाइज सोल्स, अब मैं उनकी शरण में जाऊंगा. है ना? तो ये उन्होंने डिसाइड किया. और साथ साथ गजेंद्र ने ये भी कहा कि ये जो टाइम रूपी जो सरपेंट है, राइट, ये जो अंतकम है, अंतकम ओरगात बलिनो, वेरी पावरफुल समय, प्रचंड वेगात अभिधावतो भृशम. प्रचंड वेग से जो काल भाग रहा है, ये मुझको चेज कर रहा है. प्रभु प्लीज कम, भास्कर प्रभु प्लीज कम. राम प्रभु यू आल्सो कम हियर. You all inspire me when you sitting here. Yeah. So उन्होंने निश्चय किया गजेंद्र ने कि ये जो काल रूपी सर्प है, एंडलेसली भृशम, एंडलेसली मुझको चेज कर रहा है. आप जैसे मूवीज देखते हो ना, डिशुम डिशुम होता है. तो ये भृशम हो रहा है, उसमें डिशुम डिशुम पिटाई होती है. इसमें ये भृशम एंडलेसली, उन्होंने कहा ये काल मुझको चेज कर रहा है. और कल मैंने बताया था आपको, काल रूपी सर्प जो है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम लोग कहते हैं मैं आई एम 5 ईयर ओल्ड, मतलब 5 साल हम लोग 5% आई हैव गॉन इनटू द माउथ ऑफ द सर्पेंट ऑफ टाइम. 10 ईयर ओल्ड मतलब 10%. 10% ऑफ व्हाट? इफ यू गोइंग टू लिव 100 years, only then it is 10%. if you going to live less than 100 years, then it is more than 10%. काल के अंदर हम जा चुके हैं. अगर कलयुग के हिसाब से 100 साल की उम्र देखी जाए, 50 साल मतलब यहां तक हम उसके मुंह में जा चुके हैं, और 75 मतलब यहां तक जा चुके हैं, सिर्फ गर्दन ही गर्दन बची है. तो गजेंद्र को अकस्मात ज्ञान हो गया. अकस्मात उन्होंने रियलाइज किया कि ये कुछ विधाता का अरेंजमेंट है. एंड देन ही डिसाइडेड दैट आई शुड टेक शेल्टर at the feet of lotus feet of the supreme personality of God. जो विधाता है, जो भगवान, उनकी शरण में मुझको जाना चाहिए. फिर आज हम स्तुति करेंगे. इसमें 3rd चैप्टर में 33 श्लोकास है. तो आज हम लोग ट्राई करेंगे, शुरू के 8 या 9 कवर करते हैं. अगले 5 दिन में वी गोइंग टू कवर ऑल दिस 33 वर्सेस. राइट, सो टुडे विल कवर 6, 7 और 8, जितना हम लोग जा सकते हैं कवर करके. ठीक है. तो पहला श्लोक, उसमें स्तुति नहीं है, बट पहले श्लोक में actually we want to recite one verse. Let's just recite that together and then we will. So if you can bring on your phone chapter canto 8 chapter 3 verse number 7. Search in Google. SB 837 8.3.7 3.7. तो ये गजेंद्र जी ने स्तुति किया है. जब तक आप ढूंढ रहे हैं मैं आपको बताऊं,
उन्होंने स्तुति में किसी भगवान का नाम नहीं लिया। ही डिड नॉट से कि आप ये आ जाइए, मुकुंद भगवान आ जाइए, दामोदर भगवान आ जाइए। ही डिड नॉट कॉल आउट एनी पर्टिकुलर नेम ऑफ द लॉर्ड, व्हाट टू स्पीक ऑफ डेमीगॉड्स। किसी का उन्होंने नाम नहीं लिया। इन श्लोकों में वो सिर्फ भगवान के गुणों को डिस्क्राइब कर रहे हैं। समझ रहे आप? वो सिर्फ उनकी लीलाएं, उनके गुण बता रहे हैं कि उनके गुण ऐसे हैं, वो भगवान ऐसे हैं, उनके गुण ऐसे हैं। तो पूरे जो 30 वर्ष अप टू वर्ष नंबर 31, राइट, उनके गुणों की चर्चा हो रही है। फिर जब भगवान आ जाते हैं तब फिर कहते हैं वो उनको नारायण, राइट। तब गजेंद्र कहते हैं नारायण भगवान, राइट, मैं आपकी शरण में आता हूं। बट ही इज जस्ट कॉलिंग आउट द क्वालिटीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो ये इन वर्सेस में हम लोग भगवान के गुणों के बारे में सुनेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दोज। तो वर्स नंबर 7, या प्लीज रिपीट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. दिदृक्षवो सपदं सुमंगलम्। Dikshavoya Sumangalam. दिदृक्षवो सपदं सुमंगलम्। Dikshavoya Samadam Sumangalam. विमुक्त संगा मुनय सुसाधवा। Vimukta Sangha Mudaya Susadava. विमुक्त संगा मुनय सुसाधवः। Vimukta Sangha Mudaya Susadava. लोका चरन्ति लोका वृत अवृणं वने। Charanti Loka Vritam Vane. चरन्ति लोका वृत अवृणं वने। Charanti Loka Vritam Vane. भूतात्म भूता सुहृद समे गतिः। Bhutatma Bhuta Vivrita Samekati. भूतात्म भूता सुहृद समे गतिः। Bhutatma Bhuta Vivrita Samekati. Very nice. Word by word translation. Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada की Jai. Please repeat. दिदृक्षय, Didrikshaya. भगवान को भगवान को देखने के इच्छुक, यस्य, यस्य जिसके, जिसके पदम, पदम चरण कमल, चरण कमल सुमंगलम, सुभगम कल्याणप्रद, विमुक्त संगा, विमुक्त संगा भौतिक दशाओं से से पूरी तरह मुक्त, पूरी तरह मुक्त मुनिय, मुनय मुनिगण, मुनिगण सुसाधव, सुसाधव आध्यात्मिक चेतना में बढ़े बढ़े चढ़े, बड़े चढ़े चरंती, चरण अभ्यास करते हैं, करते हैं। अलोक व्रतम, व्रतम ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ वानप्रस्थ या या सन्यास के व्रत, संन्यास के व्रत अव्रणम, आवरण बिना किसी त्रुटि के, वने, वन में, भूत आत्म, भूता, भूता जो समस्त जीवों के प्रति जो समस्त जीवों के प्रति समान भाव रखते हैं, रखते हैं। सुहृदय, सुहृदय जो सबों के मित्र हैं, उनके मित्र हैं। स, स वही भगवान,
में मेरा मेरा गति ही गति गंतव्य, वही भगवान मेरी गति। तो ट्रांसलेशन बाय श्रीला प्रभुपाद की प्लीज रिपीट। जो सभी जीवों को जो सभी जीवन को समभाव से देखते हैं समभाव से देखते हैं और और जो सबों के मित्रवत हैं तथा जो जो जंगल में जंगल में ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ वानप्रस्थ तथा तथा संन्यास व्रत का संन्यास व्रत का बिना त्रुटि के के अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते हैं ऐसे विमुक्त ऐसे मुक्त तथा मुनिगण तथा मुनिगण भगवान के कल्याणप्रद भगवान के कल्याण चरण कमलों का का दर्शन पाने के दर्शन पाने के इच्छुक रहते हैं, रहते हैं। वही भगवान मेरे गंतव्य हों। आप समझते हैं गति शब्द को समझे। गति के दो मीनिंग होते हैं। गति का एक मतलब होता है स्पीड और गति का एक मतलब होता है एंड, गंतव्य। तो यहाँ वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरी गति हो भगवान। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले दिन हमने चर्चा की थी भगवान की कथा, तत्कथासु महत् पुण्यम धन्यम स्वस्ति अयनम। तो स्वस्ति अयनम में हमने कहा तो मंगल करने वाली होती है। तो मंगल का मतलब क्या था? आपका इस लाइफ में आपका जीवन अच्छे से चल रहा है और आपको अंत में भगवान की प्राप्ति हो। और अमंगल क्या होगा? इस लाइफ में आप धक्के खा रहे हो और फिर नरक में जाओगे। तो मंगल और अमंगल ये डिफरेंस है। तो इसमें हम गति की बात कर रहे हैं। गति का मतलब क्या है? मेरा मार्ग भी सुगम, मेरा रास्ता भी अच्छा हो और मेरा अंत भी अच्छा हो। तो इसीलिए कहा है भक्ति जो है, भक्ति इज द प्रोसेस एंड भक्ति इज ऑल्सो द अल्टीमेट गोल। आप समझे? कई बार लोग कहते हैं आप लोग गोलोक में जाके क्या करोगे? वहां पे भी भक्ति करनी है, यहाँ पे भी भक्ति करनी है। So this is the gati, this is the process, and this is the gantavya also, both, right? So that is the mood. Okay. Purport by Srila Prabhupada की जय। Please hear. इस श्लोक में भक्तों या उच्च आध्यात्मिक चेतना वाले व्यक्तियों के गुणों का वर्णन है। भक्त सबों पर समान दृष्टि रखते हैं। वे उच्च तथा निम्न जातियों में कोई अंतर नहीं देखते। पंडितः समदर्शिनः, वे हर एक को आत्मा के रूप में देखते हैं जो भगवान का अंश होता है। इस प्रकार वे भगवान की खोज करने के पात्र होते हैं, यह समझते हुए कि भगवान हर एक के मित्र हैं। सुहृदय सर्वभूता नाम, वे भगवान की ओर से हर एक से मित्रवत व्यवहार करते हैं। वे राष्ट्रों या जातियों में भेदभाव न बरतते हुए सर्वत्र कृष्ण भावनामृत अर्थात भगवत गीता के आदेशों का उपदेश देते हैं। इस प्रकार ये भगवान के चरण कमलों का दर्शन पाने के पात्र होते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि पात्रता हमें बनानी है, राइट? द होल मूड इज कि वी बिकम एलिजिबल। आप देखें अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दिया था, वो भी घबरा गया था। रिमेंबर दैट पास्ट टाइम? अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दिया, अर्जुन भगवान को देख के कांपने लगा और अर्जुन ने कहा नहीं नहीं, आप अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाइए। दिव्य दृष्टि देखने के बाद उसका ये हाल था। व्हाट टू स्पीक ऑफ अस? So we have to train ourselves, right, to be able to see the Lord. नहीं तो हम देख ही नहीं पाएंगे। With these material eyes we cannot see him. एक बार प्रभुपाद से लोगों ने पूछा क्या हम भगवान को देख सकते हैं? माता जी आगे आ जाइए। I think there is more people coming. प्रभु you come forward. Come here भास्कर प्रभु। राम प्रभु come closer. तो उन्होंने कहा क्या हम भगवान को देख सकते हैं? प्रभुपाद से पूछा। प्रभुपाद ने कहा भगवान को देख सकते हो, लेकिन उसको देखने से पहले आपको आदमी बनना पड़ेगा। आदमी बनना पड़ेगा। उन्होंने कहा हम तो ऑलरेडी आदमी हैं। प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं, आपको आदमी बनना पड़ेगा, आपको दिव्य चक्षु लेने पड़ेंगे। फिर उन्होंने कहा कैसे मिलेंगे? तो प्रभुपाद ने कहा सबसे पहले आप 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करो। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स क्या है? बोलिए। Austerity, truthfulness, mercy, and cleanliness.
Yeah, so that's the result of following those four regulative principles. So no, But no meat eating, no gambling, no intoxication, and no illicit relationship. And then what you said, अगर ये नहीं करते तो क्या होता है? Good that Prabhu mentioned, right? If we do intoxication, then what happens? The truthfulness goes away, right? If we have illicit connections, then the cleanliness goes away, right? Then intoxication, cleanliness, meat eating. If we eat meat eating, then mercy goes away. जो आपके हृदय में जो दया है, जीव दया, नामे रुचि जीव दया, राइट? वैष्णव सेवन यही से अधिक धर्म नहीं, सुनो सनातन. Mahaprabhu is when instructing to Sanatan Goswami, he is telling him these three things, right? जीव दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवा, वैष्णवों की सेवा, भगवान के नाम में रुचि और जीव के ऊपर दया. इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है. सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने कहा. Because when we are killing another living entity, what we are doing is we are obstructing their journey. That's how we need to understand this. Every soul has a journey. And they are doing that journey based on उन्होंने जो अपने पिछले कर्म किए हैं, उस कर्म के हिसाब से उनकी यात्रा चल रही है. अगर आप उस यात्रा में उनको बाधा डालेंगे, उनका टाइम फिक्स हो गया है. अभी गजेंद्र जी देखिए, गजेंद्र जी का उनका फिक्स है कि इतने समय के बाद उनको भगवान की भगवत प्राप्ति होगी, राइट? इफ somebody kills an animal, then we are obstructing their journey to their next life. And by doing that, it is a promise. अगर जिस मुर्गे को आज आपने मारा, वो मुर्गा कल आपको मारेगा, आपको फिर मुर्गा बनना पड़ेगा. भगवान कपिल देव फ्रूटिटिव वर्कर्स के बारे में बताते हैं, उनकी गति क्या होती है. 3rd कैंटो 30th चैप्टर वर्ष नंबर 34. तो भगवान कपिल देव उसमें कह रहे हैं कि अधस्तान नरलोकस्य यावतिर यातना दया क्रमशः सम अनुक्रम्य पुनरअत्र आवृतेत शुचि. इसको समझे आप, इंपॉर्टेंस ऑफ द ह्यूमन लाइफ. तो भगवान कपिल क्या कह रहे हैं माता देवहूति को कि अधस्तान नरलोकस्य, यू आर ऑन द ह्यूमन प्लैनेट, आपको मनुष्य जन्म मिला है, राइट? जब आप अपना शरीर छोड़ते हैं, इस मनुष्य योनि में, मनुष्य जीवन में आपने जो भी कर्म किए हैं, उसके हिसाब से आपको सजा भुगतनी पड़ेगी. अगर आपने फ्रूटिटिव वर्कर का काम किया, फ्रूटिटिव वर्कर का पर्पस मतलब क्या है कि आपने भगवान की भक्ति नहीं की है. आपने जो भी कर्म किए हैं, आपने उसको एक पर्सनल गेन के हिसाब से किए हैं, उसमें आपने केयर नहीं किया है. और उससे पहले वर्सेस में भगवान ने बताया है कि जो फ्रूटिटिव वर्कर, उसके लक्षण क्या है. वो परिवार को पालने के लिए सारे गलत काम करता है, वो चोरी करता है, झूठ बोलता है, सब कुछ करता है. और फिर उसमें बताया है कि उसको फिर यमदूत आके ले जाते हैं. यमदूत टेक हिम, यमदूत उसको पनिशमेंट देते हैं, राइट? आफ्टर द पनिशमेंट दे आर पुट इनटू द हेलिश प्लैनेट्स. वो हेलिश प्लैनेट्स में जाते हैं, और हेलिश प्लैनेट्स में जाने के बाद उनको वहां पे जितने भी उन्होंने कर्म किए होते हैं, उसके हिसाब से उनको कष्ट भोगना पड़ता है. और वो कष्ट भोग करके व्हेन दे आर प्योरिफाइड, और उसमें वो बता रहे हैं यावतिर यातना दया, जितनी भी यातनाएं हैं वो आपको सब भोगनी पड़ेंगी. आपने किसी मुर्गे को मारा है, आप एक बार मुर्गा बनोगे, मुर्गा आपको मारेगा. आपने किसी के साथ चोरी की है, वो फिर आपको चोरी, वो आपके साथ भी चोरी करेगा. यू हैव टू गो थ्रू द सेम कर्मों का फल आपको भुगतना पड़ेगा. पहले तो सजा मिलेगी, पहले तो यमदूत मारेंगे, राइट? वो सब पूरा होगा, उसके बाद आपका हिसाब किताब होगा सारा. वो सारा हिसाब किताब होने के बाद व्हेन यू आर प्योरिफाइड, और भगवान कह रहे हैं कि उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी, वो अकाउंटिंग एकदम प्रॉपर है. क्रम से अनुक्रम में मतलब पूरी सीक्वेंस में एक एक करके पूरी अकाउंटिंग होगी. चित्र को फोटो ले रहे हैं सबकी, राइट? पूरा सीक्वेंस में आपका सब कुछ हो जाएगा. उसके बाद पुनर्अत्र, फिर भगवान कह रहे हैं वो फिर से
शुचि, वो जीवात्मा फिर से क्लीन स्लेट लेकर के फिर मनुष्य जन्म प्राप्त करता है। देखो कितनी बड़ी यात्रा करके हम लोगों को मनुष्य शरीर मिला है, और इस मनुष्य शरीर में अगर हम भगवान का भजन नहीं करते हैं, फिर से उन्हीं एक्टिविटीज में घूम जाते हैं, तो नेक्स्ट साइकिल इज रेडी। तो इस तरीके से साइकिल चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that we engage ourselves in this process of chanting of the holy names, right? तो मैं क्या बता रहा था आपको, जीव दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवन, यही से अधिक धर्म नहीं, सुनो सनातन। तो मनुष्य जन्म मिला है, हम लोग ये सारे धर्मों का पालन करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका प्रभु नहीं पढ़ा था हमने, पूरा तो नहीं पढ़ा था, ओके। तो वे जातियों राष्ट्रों में भेदभाव न करते हुए सर्वत्र कृष्ण भावनामृत अर्थात भगवत गीता के आदेशों का उपदेश देते हैं। इस प्रकार वे भगवान के चरण कमलों का दर्शन पाने के पात्र होते हैं। अच्छा, मैं पात्रता के बारे में बता रहा था आपको, सॉरी, वहां पे ब्रेक। हाँ, तो दैट्स व्हेन वी बिकम एलिजिबल, नाउ वी बिकम एलिजिबल टू परफॉर्म डिवोशनल सर्विस, यू अंडरस्टैंड। हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन परफॉर्म डिवोशनल सर्विस इन वट एवर स्टेट यू आर, बट द पॉइंट इज हम लोग रेडी ही नहीं है, हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। आप समझ रहे हो, जैसे वाल्मीकि जी को बोला राम का नाम बोलो, वो राम बोल ही नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने मरा मरा बोला, मरा मरा बोला, और फिर मरा मरा राम हो गया। सो दैट इज द मेन पॉइंट, हमारी पात्रता, आवर एलिजिबिलिटी टू बी एबल टू चैंट द होली नेम्स, तो वो पात्र हो जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के ऐसे उपदेशकों को परमहंस कहा जाता है। जैसा कि विमुक्त संग शब्द से सूचित होता है, उन्हें भौतिक परिस्थितियों में कुछ भी लेना देना नहीं रहता। मनुष्य को चाहिए कि भगवान का दर्शन करने के लिए वह ऐसे भक्त की शरण में जाए। सो दैट्स व्हाई वी से वी टेक द एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, द ओनली थिंग इज वी हैव टू टेक एसोसिएशन। तो अब हम लोग गजेंद्र जी की स्तुति को शुरुआत करते हैं। तो क्या हुआ, गजेंद्र जी को अकस्मात ध्यान आ गया, और फिर कहते हैं, अब गजेंद्र जी ने कैसे स्तुति किया, एवं व्यवस्थितो बुद्धिया, पहले वर्ष में वो कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, उन्होंने अपनी बुद्धि को व्यवस्थित किया, एवं व्यवस्थितो बुद्धिया, राइट। और बुद्धि को कैसे व्यवस्थित किया, व्यवस्थित मतलब उन्होंने एक फोकस किया, डिटरमाइन किया उन्होंने, राइट। क्योंकि हम बुद्धि से निश्चय करते हैं, उन्होंने निश्चय कर लिया, राइट। और फिर अपने मन को उन्होंने कंट्रोल किया, यू नो, राइट। समाहित मन हृदय, अपने हृदय में मन के ऊपर जैसे आप लोग कंसंट्रेट करते हो, राइट। तो उन्होंने इस तरीके से कंसंट्रेट किया, और फिर क्या करने लगे, जजाप परमम जाप्यम प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम। अब देखिए, पूर्व जन्म में उन्होंने भक्ति की थी, कल मैंने आपको बताया इंद्र, उनका जन्म पिछले जन्म में क्या थे, गजेंद्र महाराज इंद्रद्युम्न। तो उन्होंने पिछले जन्म में जो भजन किया था, वो भजन उनको याद आ गया। अब इसलिए कहा जाता है कि भक्ति हम जहां तक करते हैं, भक्ति कभी वेस्ट नहीं जाती, नेक्स्ट लाइफ में आपका वहीं से शुरू हो जाता है। आप इस जीवन में डॉक्टर हैं, अगले लाइफ में डॉक्टर बने या ना बने, लेकिन जितना आपने भक्ति किया है उतना आप वहीं से शुरू करते हो, प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम। तो इससे आता है कि जिस चीज का हम लोग अभ्यास करते हैं वही हमारे मुंह से निकलेगा। संकट की घड़ी में जिस चीज का आप अभ्यास कर रहे हो वही आपके मुंह से निकलेगा। कई बार आप देखते हैं लोगों को, यहाँ पे कुछ लोग छींकते हैं तो बोलते हैं ब्लेस यू। ब्लेस यू का क्या पर्पज है, हम इंडियंस फिर रिपीट करने लगे हैं, कभी सोचा तो है नहीं इसके बारे में, राइट। आपने देखा होगा ऑफिस में कोई अंग्रेज बोल देते हैं छींक मारी ब्लेस यू, कल को वो छींक मारता आप भी बोल देते हो ब्लेस यू, लेकिन आपने सोचा नहीं उसका मतलब क्या है। बताइए माता जी। यस, जब आप छींक मारते हो तो आपका हार्ट बीट जो है इट स्टॉप्स फॉर अ सेकंड, राइट दैट्स व्हाई गॉड ब्लेस वाज ओरिजिनेटेड बिकॉज़ लोग ब्लेस करते थे कि आप नेक्स्ट बीट ले लें। राइट राइट राइट, देखिए तो हमारे, थैंक यू माता जी, थैंक यू, राइट। देखिए उसमें भी भगवान की ब्लेसिंग थी कि भगवान आपको ब्लेस कर दें, है ना। लेकिन कई बार हम लोग जो भक्त हैं वो कहते हैं कृष्णा, खांसी आ जाती है, छींक आ जाती है, कृष्णा, या गिर जाते हैं चोट लगती तो क्या कहते हैं, कृष्णा, या कहीं मान लो फिसल गए तो क्या बोलेंगे, कृष्णा।
क्योंकि प्रैक्टिस किया है कृष्णा। और जिसने प्रैक्टिस नहीं किया, अगर मान ली पानी गिरा, आप फिसल गए, तो जो सामाजिक वो क्या बोलेगा, अरे साला पानी किसने गिराया, राइट? यही बोलेगा ना, क्योंकि वो यही प्रैक्टिस कर रहा है। जो प्रैक्टिस कर रहा है वही उसके मुंह से निकलेगा। लेकिन जो भगवान के नाम, उन्होंने देखो कितनी बड़ी वो है, उन्होंने हाथी की योनि में भगवान का नाम ले रहे हैं, हम लोग मनुष्य की योनि में भगवान का नाम नहीं ले सकते। क्यों ले पाए? क्योंकि प्राग जन्मनि अनुशिक्षित, जो उन्होंने पिछले जन्म में अभ्यास किया था, जो प्रैक्टिस की थी। इतना बड़ा संकट आया उनके ऊपर, मतलब जीवन मरण की सिचुएशन आ गई, लगा कि अब जीवन ही नहीं बचेगा। उनकी पत्नियां, दोस्त, बच्चे सब छोड़ के चले गए, बिल्कुल अकेले गजेंद्र ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं है। तब उनको एहसास हुआ कि अब तो भगवान ही है। और जैसे ही उन्होंने फोकस किया भगवान के ऊपर, तो उनको स्तुति याद आ गई। और कहते हैं कि मगरमच्छ को भी लगा शायद अब ये भगवान का नाम ले रहा है, मगरमच्छ ने भी उसको थोड़ा हल्का कर दिया। मगरमच्छ ने छोड़ा नहीं अभी भी, पकड़ा तो अभी भी हुआ है जोर से, लेकिन कहते हैं कि मगरमच्छ भी रियलाइज कर गया। तो जो आपको मार रहा है, जो आपको पनिश कर रहा है, कई बार आप देखते हैं भक्त होते हैं, कोई आपको पकड़ लेता है, जो लॉ मेकिंग वो होती है एजेंसीज, वो कई बार आपके ऊपर दया करते हैं, छोड़ दो यार, ये तो बेचारा गरीब आदमी है, भगवान का नाम ले रहा है ना। उसके हृदय में भी भगवान अंदर से उसको गाइडेंस दे देते हैं कि इसको छोड़ दो। जब हमारे यहाँ भक्तों ने हरि नाम शुरू किया था स्ट्रीट में, 70s की बात है, तो उनको पुलिस पकड़ के जेल में डाल देती थी, अगर आपने सुना हो। पुलिस पकड़ के जेल में उनको डाल देती थी और बोलती थी तुम ये न्यूसेंस कर रहे हो। तब तक ये स्ट्रीट हरि नाम का कल्चर नहीं था, तो वो सोचते थे ये पागल हैं, ये लोग गलत कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने प्रभुपाद को चिट्ठी लिखी कि प्रभुपाद वी नीड दिस मच मनी टू हायर ए लॉयर। प्रभुपाद ने कहा लॉयर की क्या जरूरत है, तब तो चिट्ठी में आदान प्रदान होता था। अब इन्होंने चिट्ठी भेजी, फिर वहां से चिट्ठी का जवाब आएगा, या टेलीग्राम भेजा, टेलीग्राम का जवाब आएगा। तो इन्होंने टेलीग्राम भेजा, तो प्रभुपाद ने कहा व्हाई डू यू नीड अ लॉयर। उन्होंने कहा प्रभुपाद वी आर इन जेल, वी नीड अ लॉयर टू फाइट आवर केस। प्रभुपाद ने कहा यू चैंट होली नेम, यू डोंट नीड अ लॉयर। एंड एज इट सो हैपेंड, they were chanting in the jail also, and after some time they automatically realized the decision from the government was in the favor of the devotees. उन्होंने कहा भी as long as they are walking and chanting, they are not doing any offense। और ये आज तक ये रूल चल रहा है। आप कहीं भी होली नेम में जाते हैं, स्ट्रीट हरि नाम में, तो कहते हैं चलते रहो, बस रुको मत। इफ यू स्टॉप देन यू आर क्रिएटिंग एन ऑब्स्ट्रक्शन, अदरवाइज नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम चैंटिंग। तो सामने वाले के मन में भी दया आ जाती है, या भगवान उसके अंदर से उसको कहते हैं कि नहीं ये मेरा नाम जप रहा है, तुम इसको परेशान मत करो। तो ऐसे भक्तों की प्रोटेक्शन हो जाती है। और वही मैं कह रहा था कि जो मंगल है इस जीवन में भी, आपको भगवान की अच्छे से सफर कटेगा और आपकी गति भी अच्छी हो जाती है। तो दिस इज ऑल व्हाट वी कॉल मंगल। तो गजेंद्र जी इस तरीके से प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, जो उन्होंने सीखा था उसका उच्चारण करने लगे। अब गजेंद्र जी अपनी स्तुति शुरू करते हैं, तो कहते हैं कि ओम नमः तस्मै भगवते, राइट, यद एतद चिदात्मकम। तो भगवान को कह रहे हैं भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूं, जिन्होंने इस पूरे संसार को, इस जगत को चेतना दी है। यू आर द सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस फॉर दिस होल यूनिवर्स। आप इसको ऐसे समझे, अब यहाँ लाइट आ रही है, यहाँ लाइट आ रही है, अगर पीछे से स्विच ऑफ हो जाएगा, लाइट आना बंद हो जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट, भगवान ने हमको चेतना दी है। और वो कहते हैं अभी धीमहि, लास्ट लाइन में कहते हैं मैं उन भगवान को है परेशो, परेशा अभी धीमहि, मैं उनका ध्यान कर रहा हूं। अब प्रणाम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनका शरीर ग्रह ने पकड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा भगवान को, भगवान मैं मन से ध्यान कर रहा हूं, मैं मन से ध्यान करके आपको प्रणाम कर रहा हूं। और वो मैंने क्या कहा, स्तुति कैसी है, भगवान के गुणों के बारे में वो बोल रहे हैं। तो सब पहला उन्होंने क्या बोला, एतद यद एतद चिदात्मकम, राइट, जिन्होंने इस पूरे संसार को चेतना दी है, मैं उनको प्रणाम करता हूं, राइट। तो थोड़ा सा मैं आपको क्रिएशन के बारे में बताता हूं, देन यू कैन रिलेट टू दिस कि चेतना का कॉन्सेप्ट क्या है। थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेटेड हो प्लीज डोंट वरी, जस्ट ट्राई टू गो विद द फ्लो, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। तो जो क्रिएशन का कॉन्सेप्ट है,
एक हमारे मतलब द वे क्रिएशन हैपेंस इज, महाविष्णु गोस्वामी, महाविष्णु, उनको हम कारणोदक्षाय विष्णु भी कहते हैं, राइट। ही इज एन एक्सपेंशन फ्रॉम संकर्षण। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण से बलराम आते हैं, बलराम से फिर संकर्षण आते हैं, और फिर आगे दो एक्सपेंशन होते हैं, और उनसे आते हैं महाविष्णु। और महाविष्णु कारणोदक्षाय ओशन में लाई कर रहे हैं, ही इज लाइंग देयर नाउ। फ्रॉम हिज पोर्स, उनके जो पोर्स ऑफ हिज बॉडी, उसमें से हमेशा, या एक बार वो सांस छोड़ते हैं तो बहुत सारे यूनिवर्स बाहर आ जाते हैं, वो सांस लेते हैं तो यूनिवर्स अंदर चले जाते हैं। अब इस बात को हम कैसे मानते हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में, ब्रह्म संहिता 5th कैंटो, वो एक ही बस, नोबडी नोज उसके पिछले कैंटो, पिछले चैप्टर्स कहाँ हैं, राइट। इट्स ओनली 5th कैंटो 5th चैप्टर, जो एक बुक, जो एक है ब्रह्म संहिता जो हम पढ़ते हैं। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में कहा है, यह कारणार्वजले भजति स्म योग, निद्राम अनंत जगदंड सरो मकूप, आधार शक्ति अवलंब पराम स्वमूर्तिम, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अब ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, ये तो आप सब मानते हैं, कोई प्रश्न नहीं इसके बारे में। अब अगर ब्रह्मा जी ने कुछ कहा है तो वी शुड बिलीव दैट, लाइक हमारे फादर कुछ कहते हैं। तो ब्रह्मा जी इसको कह रहे हैं, ब्रह्मा जी इसमें क्या कह रहे हैं कि ये जो भगवान कारण अर्णव, अर्णव कहते हैं ओशियन को, जो कारण ओशियन में जो भगवान शयन कर रहे हैं योग निद्रा में, जब वो भगवान योग निद्रा में है, रोमकूप, पोर्स ऑफ हिज बॉडी, रोम और कूप कहते हैं कुएं को, तो उनके लिए तो कूप होगा, हमारे तो छोटा छोटा है, बट उनके रोमकूप में से अनंत जगदंड, ये जो अंडाकार जो यूनिवर्स हैं, ये अनंत उनकी बॉडी से, रोमकूप से निकलते रहते हैं, और वो निकलते भी हैं। एंड ही इज द आधार शक्ति, ही इज द वन हु इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू दीज यूनिवर्सेस। तो वो जो गोविंद भगवान है, जो पुरुष है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। तो ये हमने कैसे समझा? ब्रह्मा जी ने कहा तो जो यूनिवर्स है वो भगवान महाविष्णु के शरीर से निकल रहे हैं, और यही महाविष्णु भगवान फिर उसमें चेतना करते हैं। तो प्रोसेस क्या होता है? यूनिवर्सेस निकले उनकी शरीर में से, एंड दे आर लाइंग इन द कारणोदक्षाय ओशन। अब जो अभी उनमें कुछ मूवमेंट नहीं है, दे आर जस्ट लाइंग देयर, लेकिन जैसे ही भगवान अपनी दृष्टि से उनको इम्प्रेग्नेट करते हैं, क्या करते हैं? इम्प्रेग्नेट करते हैं अपनी दृष्टि से। द मोमेंट भगवान महाविष्णु लुक्स एट देम, वो इम्प्रेग्नेट हो जाते हैं, उनके अंदर जो सारी जीवात्माएं हैं जो भगवान के शरीर में पहले चली गई थी, वो फिर उसमें ट्रांसफर कर देती। तो ऐसे उस यूनिवर्स के अंदर चेतना आ जाती। तो गजेंद्र जी देखो, एक हाथी की योनि में वो भगवान की जो सुप्रीम एनर्जी है, इज द सुप्रीम ओरिजिन, उसको याद कर रहे हैं, हे भगवान आप ही चेतना का सोर्स हो, यद एतद चिदात्मका। समझ गए सब लोग? उसके बाद वो नेक्स्ट उसमें कहते हैं, पुरुषाय आदि बीजाय, आप ही पुरुष हो, राइट। आदि कहते हैं प्रकृति को, और बीज कहते हैं सीड को, राइट। या उसमें हम लोग भी आ गए, जीवात्मा आ गए, राइट। तो प्रकृति और जीवात्मा, हम लोग दो लोग हैं, राइट। और पुरुष किसको कहते हैं? जो एक सिटी में रहता है, पुरुष पूर्व, पूर्व, राइट। तो जैसे हमारी बॉडी है, दिस बॉडी इज कॉल्ड अ सिटी ऑफ 9 गेट्स। यू नो द 9 गेट्स कौन है? 2 eyes, 2 nostrils, 2 ears, 1 mouth and 2 below, right? So these are the 9 gates in the body. तो इस बॉडी में जो रहते हैं उसको पुरुष कहा जाता है। इस पुरुष के मालिक कौन है? भगवान। जैसे यहां पे तो इतना कल्चर नहीं है, भारत में मकान मालिक होता है, एक टेनेंट होता है, एक किराएदार होता है। मकान मालिक ऊपर वाले माले पर रहता है, टेनेंट नीचे रहता है। टेनेंट भी उसमें रह रहा है, लेकिन मकान मालिक एक ही है। तो सिमिलरली इसका मालिक भगवान है, एंड वी आर टेनेंट इनटू दिस बॉडी। आप ऐसे समझ लीजिए,
राइट। वी आर टेनेंट इन दिस बॉडी, और इसका मालिक कौन है? भगवान, है ना। इसीलिए हम कंठी माला पहनते हैं। कंठी माला क्यों पहनते हैं हम लोग? कंठी माला हम इसलिए पहनते हैं कि भगवान जब समय आएगा तो ये भगवान को ऑफर करना है। मैं आपको बताता हूँ, एक रसखान हुए हैं हमारे मथुरा में। कवि रसखान हुए, आपने उनकी कुछ मालूम, कुछ रचनाएं सुनी हो, लेकिन एक बहुत ही फेमस है उनकी। वो उसमें कहते हैं कि जा ही अनादि अखंड अभेद सुछेद अभेद अछेद सुबेद बतावें, राइट। और जो इंद्र हैं, जो भगवान शिव हैं और नारद हैं, वो उनका पार पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका पार नहीं पा सकते। और जो अखंड है, अभेद है, सुवेद है, इतना उनका वो है। और नारद और व्यास उनकी लीलाएं गाते रहते हैं, तो भी उनके बारे में पार नहीं पा सकते। लेकिन लास्ट लाइन में वो कहते हैं, जाहि अहीर की छोरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचा। तो ये रसखान जी ने लिखा है। तो रसखान जी ने एक बार कंठी माला पहन ली। मुस्लिम थे, मथुरा में रहते थे। आप अभी भी जाएंगे परिक्रमा मार्ग पे, यू कैन सी ए स्टोन देयर। उनकी समाधि वहां पे बनाई गई है। भले ही मुस्लिम उसमें पैदा हुए थे, बट ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो उन्होंने एक बार बहुत सारी कंठी माला पहन ली, गले में 15-20 कंठी माला पहन ली, और भगवान कृष्ण का भजन करते थे। तो उनकी शिकायत लगा दी। तो शिकायत लगा दी, तो जो मुस्लिम किंग थे, ही वेंट इनटू दैट कोर्ट, और उसने उनसे कहा कि भाई तू क्यों इतना, ये क्या हो गया, क्या पागलपन हो गया है तुझको, तो ये सब क्या काम कर रहा है? और क्या इसमें मुसलमान, इसमें इस्लाम में क्या कमी है? क्या कमी इस्लाम में जो बिसराई आन? तुमने इस्लाम को छोड़ दिया, इस्लाम में क्या कमी है? तो कहते हैं, रसखान जी ने कहा, कमी ना कुछ इस्लाम में, ना बिसराई आन, मनुआ बैरागी हुआ सुन मुरली की तान। भगवान कृष्ण की मुरली को सुन करके मेरा मन वैरागी हो गया है। मैं इस्लाम के अगेंस्ट नहीं हूं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो फिर उसने कहा, एम्परर ने, कि ठीक है, ये तो मैं मानता हूं, लेकिन ये तूने इतनी सारी कंठी माला क्यों पहन रखी है? जो हिंदू है, जो वो है, वो तो हमने देखा 2-2 3-3 राउंड की पहनते हैं, तूने 15-20 की कंठी माला क्यों पहनी है? तो रसखान ने कहा कि महाराज, और जो भी उसने एड्रेस किया, संबोधित किया, उसने कहा कि मैंने सुना है जो ठाकुर जी हैं वो बिना तुलसी के एक जल भी नहीं स्वीकार करते। बिना तुलसी के, बिना तुलसी दल के जल भी नहीं स्वीकार करते हैं। और उन्होंने कहा, जहां तक मेरे हिंदू भाइयों की बात है, ये तो ऑलरेडी प्योरिफाइड है, क्योंकि इनका जन्म ऐसे कुल में हुआ है, वहां पे भगवत चर्चा होती रहती है। और उन्होंने कहा कि महाराज, आप ये देखिए, जब एक बोट को पानी में ले जाते हैं, राइट, एक बोट को पानी में ले जाते हैं, उसमें एक हल्का पत्थर होगा तो उस हल्की बोट में वो चला जाएगा। लेकिन एक भारी बोट, भारी पत्थर होगा, तो उसके लिए एक बड़ी बोट चाहिएगी। इट विल बी डिफिकल्ट टू कैरी ए हैवी पत्थर इन अ स्मॉल बोट। तो उसने कहा, महाराज मेरी स्थिति वैसी ही है। ये जो मेरे हिंदू भाई हैं, ये तो अच्छे कुल में पैदा हुए हैं, इनका तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन मैं जब, मेरा जब शरीर छोड़ने का टाइम आएगा, और जब मुझे भगवान कैसे स्वीकार करेंगे, मेरी जो पाप में देह है, ये इतनी भारी हो गई है, इस पापों से, इट हैज बिकम सो हैवी ड्यू टू द सिंस आई हैव परफॉर्म्ड। तो इफ आई हैव टू ऑफर माई सेल्फ टू कृष्णा, ये तो 2-3 माला में इनका काम हो जाएगा, लेकिन मेरे जैसे जो पापी है, मुझको 10-20 पहनना ही पड़ेगा, तभी मुझे भगवान स्वीकार करे। तो ये जो साइन है हम लोगों का, ये जो हम कंठी माला पहनते हैं, इसीलिए पहनते हैं कि भगवान हमको स्वीकार कर ले, है। तो ये जो शरीर मैं कह रहा हूँ, इस शरीर में भगवान रहते हैं। अब कई बार वी डोंट रियलाइज, इसको डस्टबिन की तरह हम लोग भरते रहते हैं। डस्टबिन में आप कुछ भी कूड़ा डाल देते हैं, सिमिलरली वी पुट सम एनीथिंग इनटू दिस बॉडी, है ना। किसी को, इसीलिए कहते हैं भगवान को भोग लगा के पाना चाहिए। भगवान ने उसको अगर एक्सेप्ट कर लिया, देन वी शुड पुट इनसाइड। क्योंकि भूल रहे हैं कि इसके अंदर कोई और भी है। इसमें मीट डाल रहे हैं, इसमें शराब डाल रहे हैं, इसमें अंडा डाल रहे हैं, कुछ भी इसमें डाल रहे हैं, डस्टबिन है क्या ये? क्योंकि अंत तो गत्वा ये भगवान को ऑफर करना है। तो यू आर ए टेनेंट इन दिस बॉडी, और इस भगवान के, इस शरीर के मालिक कौन है? भगवान है। तो वो गजेंद्र जी, देखो गजेंद्र जी की स्तुति आप समझे कितना डीप मीनिंग वो इसमें बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यथ एतद चिदात्मकम, जिन्होंने इस पूरे यूनिवर्स को चेतना दी है, जो भगवान असली पुरुष हैं, जो इस शरीर के मालिक हैं,
एंड ही इज द आदि बीजाय, राइट, बीज। अब कई बार प्रश्न उठता है कि प्रभु जी बीज पहले आया या पेड़ पहले आया? भाई बीज किससे आएगा? फल से आएगा, और फल किससे आएगा? पेड़ से आएगा। तो पहले पेड़ था या पहले फल था? राइट, सोचने की बात है। तो पहले क्या आया? तो इसमें भक्त कहते हैं सबसे पहले भगवान थे और कुछ नहीं था। भगवान ने ही सब कुछ दिया। भगवान, फिर हम लोग भगवत गीता का रेफरेंस लेते हैं। भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं 14 चैप्टर 4th वर्स, राइट। वो कह रहे हैं भगवान, हे 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 कुंती पुत्र, अर्जुन को संबोधित करके भगवान कह रहे हैं, राइट, सर्व योनिषु कौन्तेय, सब योनि का ओ कुंती पुत्र, सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदः पिता, आई एम द सीड गिविंग फादर ऑफ ऑल द स्पेसीज ऑफ लाइफ। अब उसमें चाहे पेड़ है, चाहे उसमें फल है, जो भी है, ही इज द सीड गिविंग फादर। तो गजेंद्र जी उस भगवान को याद कर रहे हैं। तो गजेंद्र जी ने क्या कहा पहले वर्ष में? ये स्तुति अब हम कोशिश करें हमें भी याद हो जाए। कल कौन? प्रभु मुझको बता रहा था, प्रभु वाज टेलिंग मी पीपल रिसाइट दिस एवरी डे। और मैंने कहा कि वी कैन रिलेट टू गजेंद्र वेरी मच। जैसे गजेंद्र को ग्रह ने पकड़ा, हमें भी ग्रह ने पकड़ा हुआ है। तो दिस कुड बी आवर स्तुति ऑल्सो। ओम नमो भगवते तस्मै, राइट, पहला वर्ष है, यत एतत् चिदात्मकम, राइट, पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय अभिधीमहि। तो बीज का मतलब आपको समझ में आ गया, आपको चिदात्मक का मतलब समझ में आ गया, आपको पुरुष का मतलब समझ में आ गया। अगले में फिर वो कहते हैं परेशाय। तो क्या सिर्फ ये जीवात्मा आपको प्रणाम कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, गजेंद्र जी कह रहे हैं नहीं, ये सिर्फ जीवात्मा नहीं भगवान, आप तो सुप्रीम कंट्रोलर हो, जो पर हैं, जो बड़े हैं, जो ब्रह्मा है, जो शिव है, जो देवता है, वो सब जितने भी हैं, वो आप उनके भी ईश्वर हो। मैं उन भगवान का ध्यान करके उनको प्रणाम कर रहा हूं अभी भी मैं। तो इस तरीके से गजेंद्र ने सबसे पहले भगवान हु इज द सुप्रीम ओरिजिन, हु इज द सोर्स ऑफ ओरिजिन, सोर्स ऑफ एवरीथिंग, उनका ध्यान करके गजेंद्र ने जो पहले स्तुति। अब फिर दूसरे श्लोक में वो आते हैं। दूसरे में वो कहते हैं कि यस्मिन इदम यतश्चेदम येन इदम या इदम स्वयं। पहले तो उन्होंने ओरिजिन बता दिया, अब वो उस यूनिवर्स के बारे में कह रहे हैं कि जो यूनिवर्स है भगवान, यस्मिन इदम, ये आपके अंदर से ही आया है। उसके लिए मैंने आपको ब्रह्म संहिता का रेफरेंस दे दिया, पहले जो हमने बताया था। अनंत जगदंड स रोम कूप, उनके जो कूप है उसमें से निकलते हैं। तो भगवान, ये यूनिवर्स आपके अंदर से ही है। तो यस्मिन इदम यतश्चेदम, आप ही इसको सपोर्ट करते हो, आप ही इसको सपोर्ट करते हो। और ये निदम, इसके जो इंग्रेडिएंट है ये आपसे ही आए हैं इस यूनिवर्स के। या इदम स्वयं, और यू योरसेल्फ हैज टेकन द फॉर्म ऑफ दिस यूनिवर्स। तो ये सब कुछ आप ही हैं, है? और फिर वो कहते हैं यो अस्मात् परस्मात् च परम तम प्रपद्ये स्वयं भुवम्। वो कहते हैं कि आप इससे भी परे हो, क्योंकि यूनिवर्स भगवान से निकला। अस्मात्, इससे परे, और उससे भी परे। तो इस यूनिवर्स से परे कौन है? भगवान महाविष्णु। और महाविष्णु से परे कौन है? भगवान गोविंद। परात पर, यू आर बियॉन्ड द ट्रांसेंडेंस। मैं उनको सरेंडर करता हूं, इज स्वयं भुवम। स्वयं भुवम मतलब जो खुद आए हैं, उनका कोई वो नहीं है। हम सबके माता पिता हैं, लेकिन भगवान, ही इज अलोन, ही इज हिमसेल्फ, राइट। स आत्म मूलो, ही इज हिज ऑन ओरिजिन, नो वन एल्स। तो पहले वर्ष में उन्होंने क्या बोला, थोड़ा सा आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग आएगा। इट्स लिटिल बिट टू फिलोसॉफिकल, बट प्लीज इफ यू फोकस, राइट, तो याद हो जाएगा हमें धीरे धीरे। तो पहले में उन्होंने क्या बता दिया, यू आर द ओरिजिन, सुप्रम ओरिजिन, राइट। फिर उन्होंने बता दिया कि यू आर, दिस यूनिवर्स इज कमिंग फ्रॉम यू ओनली, राइट, एंड यू आर द बियॉन्ड ऑन अदर साइड ऑफ दिस यूनिवर्स, राइट। तो ये दो उन्होंने बता दिया।
अब अगले वर्ष में, चौथे वर्ष में फिर वो आते हैं। अब वो भगवान को फिर बताते हैं कि हे भगवान, ये जो है, ये जो यूनिवर्स है, ये अपीयर होता है, डिसअपियर होता है, राइट। क्वचित विभातम, क्वच तिरोहितम, क्वच तत्तिरोहितम। कभी ये अपीयर हो जाता है, मतलब ये क्रिएट होता है, और डिसअपियर होता है, मतलब एनहाइलेट हो जाता है। अपीयर एंड डिसअपियर होता रहता है, राइट। लेकिन आप हमेशा रहते हो, यू आर ऑलवेज देयर, अविद्ध दृक्, राइट। आप अविद्ध दृक् हो, आप इसको हमेशा देखते रहते हो। अब जैसे मान लीजिए क्रिएशन है, एनाइलेशन हो रहा है, आपको सड़क पे खड़ा कर दिया जाए, इधर से आती जाती कारें आप गिनो, कितना कार आप गिनोगे? आप बोर हो जाओगे, थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे बाद बोलोगे सब क्या हो रहा है। लेकिन भगवान के बारे में वो कहते हैं अविद्ध दृक्, ही इज नेवर बोर्ड, दिस क्रिएशन एनालाइजेशन इज कंटिन्यूइंग, साक्षी, ही इज द विटनेस, उभयम ऑफ बोथ creation and dissolution. He is never bored, but he is the Sakshi, Avididrik, and his eyes are pakka. So he is always seeing, he is always monitoring. Maya Dakshena Prakriti Suyate Sacharacharam. Mere under my supervision, this char and achar, this thing is creating and going on. तो हे भगवान, मैं उनको प्रणाम करता हूं। गजेंद्र ने भगवान को कहा कि जो हमेशा इसको क्रिएशन करते हैं और इसको डिसॉल्व कर देते हैं। अब क्रिएशन, अब डिसॉल्व होके यूनिवर्स कहां जाते हैं? फिर हम लोग एक और ब्रह्मा जी का रेफरेंस लेते हैं, तो गजेंद्र की स्तुति। ब्रह्मा जी फिर से उसमें कहते हैं, या शेक निश्वसित कालम अथावलंबे जीवंती लोम बिलिजा जगदंड नाथ विष्णु महान सह्यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमं भजा। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी भगवान के बारे में? हे भगवान, यह सेक निश्वास, जब आप सांस छोड़ते हो या जब आप सांस अंदर लेते हो, उससे ये जो जगदंड है, राइट, ये आपके अंदर चले जाते हैं। और वो बता रहे हैं इसमें जो इनके नाथ जो हैं, अब वो लाइफ स्पैन बता रहे हैं, इनके जो नाथ हैं, इस यूनिवर्स के नाथ कौन है? जैसे ब्रह्मा जी इज द कंट्रोलर। फिर तो कह रहे हैं कि जो इसके जो नाथ हैं, उनका लाइफ स्पैन बस इतना ही है कि जब तक ये यूनिवर्स रहता है। एंड हु आर यू, वो भी बता दिया, विष्णु महान, महाविष्णु जो एक भगवान की कला है, ही इज एन एक्सपेंशन ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन भगवान गोविंद जो आदि पुरुष हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। तो ये 3 हमने अभी प्रेयर ली। आप बताएं जरा 3 में क्या क्या हमने सीखा? एनीबडी? Anybody wants to say something? Or is it too theoretical? कुछ भी, जो भी आपको याद रहा आप बताइए। Universes come from the pores of your body. हाँ, You give consciousness or chetna to the whole universe, yes, to the whole universe. yes, This is what I can remember. okay, And they are constantly dissolving and getting created. yes, yes. So this is creation and annihilation is going on, right? Right. Any other, maybe I can take any questions or any comment if somebody has to say anything. कोई विचार आ रहा है, अपने से रिलेटेड कोई सोच आ रही है आपकी? ये गजेंद्र ये स्तुति कर रहे हैं, who is in the animal body of an elephant, he is saying this prayer. Yes. अच्छा, चलिए अगला वर्ष लेते हैं, वर्ष नंबर 6। तो अगले वर्ष में अब वो कह रहे हैं कि क्या प्रश्न ये आता है, क्या इन भगवान को जाना जा सकता है? प्रश्न ये है, कैन दिस बी नोन बाय एनीबडी? क्या कोई इनको समझ सकता है? राइट। तो गजेंद्र जी कहते हैं, न यस्य देवा ऋषय गतिम विदुर। वो कह रहे हैं ये जो भगवान है, इनको ना तो कोई ऋषि ना कोई देवा, राइट, इनकी गति, इनकी मूवमेंट्स, इनका जो पोजीशन है, पदम पदम विदुर, इनको कोई नहीं जान सकता है, राइट।
we cannot comprehend this in this human form of body. We often have these questions. तो उन्होंने कहा कि जो देवता है और जो ऋषि है वो नहीं जान सकते, तो जो जंतु है हमारे जैसे जो लिविंग एंटिटी है, हम लोग की समझ में कैसे आएगा? हम लोग नहीं समझ सकते। तो वो कहते हैं यथा नटस्या कृतिभिर विचेष्टतो, जैसे एक नाटक करने वाला है, जैसे एक नाटक करने वाला है। अब आप जब भगवान राम वन में जा रहे थे, राइट, पास्ट टाइम के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, भगवान राम ने कहा उससे, केवट से, कि मुझे आप गंगा जी पार करा दीजिए। तो केवट ने क्या कहा भगवान से? केवट ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें गंगा पार नहीं कराऊंगा। तुमको अगर गंगा पार करनी है तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो। पहले तो उसने कहा कि मैंने सुना है आप किसी को टच करते हो तो नारी बन जाती है ना? तो उन्होंने कहा कि अगर ये मेरी बोट को आपने टच किया और ये नारी बन गई तो फिर मेरे पास तो ऑलरेडी एक नारी है, मैं दो को नहीं संभाल पाऊंगा, मेरे घर में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, हमें आप गंगा जी पार करा दीजिए। तो केवट ने कहा कि नहीं, आपको अगर मेरी नाव में पार करना है तो पहले मैं आपके पैर धोऊंगा, पैर धो के फिर मैं आपका जो जल है उसको छिड़कूंगा, फिर मैं उसको पीऊंगा, और फिर मैं देखूंगा कि आपका जो पैर धोने से क्या होता है, कोई रिएक्शन तो नहीं होती, राइट। तो अब जब वो केवट ने कहा ऐसा, तो अब भगवान सोच में पड़ गए और कहते हैं भगवान ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा। अच्छा, आपको मालूम है ये कैसे हुआ, क्या था ये? इससे पहले थोड़ा बैक में चलते हैं। कहते हैं जो केवट थे वो पिछले जन्म में एक ही वॉज ए टोरटॉइस, कछुए थे वो पिछले जन्म में। और एक बार क्षीर सागर में भगवान के पैर को केवट टच करना चाह, वो केवट बोल रहा हूँ, वो मगरमच्छ, वो कछुआ टच करना चाहता था। तो जैसे वो टच करना चाहता था तो मदर लक्ष्मी ने देखा वो भगवान के पैर दबा रही थी। तो मदर लक्ष्मी ने देखा एक कछुआ आ रहा है, तो मदर लक्ष्मी ने शेष नाग को साइन किया कि देखो ये ऊपर आ रहा है और मैं तो पैर दबा रही हूँ। तो कहते हैं शेष नाग ने उनको ऊपर से थोड़ा डरा दिया और फुंकार मारी और कछुआ वापस पानी में चला गया। लेकिन कछुए के मन में था कि मैं भगवान के पैरों को टच कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो कहते हैं भगवान ने मन ही मन उसको ब्लेस किया कि अगले जन्म में मैं जब आऊंगा मनुष्य उसमें, तब तुमको ये अवसर मिलेगा। तो अब जब भगवान आए यहाँ पर, गंगा जी पार करने का जब हुआ, तो कहते हैं भगवान ने कहा, केवट को बुलाया भगवान ने खुद। केवट आ भी नहीं रहा था, वो अपने घर पे बैठा था। भगवान ने बोला, ए केवट इधर आओ, इधर आओ। तो वो इग्नोर कर रहा था पहले तो, लेकिन भगवान ने 2-3 बार बुलाया। क्यों? क्योंकि अब वो भी तो 2-3 बार कोशिश किया था ना उसने, जब वो कछुआ बन के आया था भगवान के पैर छूने के लिए। तो भगवान ने 2-3 बार बोला, ए केवट इधर आओ, इधर आओ। तो वो नहीं आ रहा था। तो कहते हैं लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया। फिर लक्ष्मण जी ने गुस्से में देखा उसको, तो वो केवट भाग के आ गया फिर तो अब जब केवट आ जाता है तो आके भगवान ने कहा केवट से, केवट हमको गंगा पार करनी है। तो केवट ने कहा कि गंगा पार तो मैं करा दूंगा, लेकिन मैंने आपके बारे में बहुत चर्चे सुने हैं। मैंने सुना है आपके बारे में कि आप जिस चीज को टच करते हो नारी बन जाती है। तो उन्होंने यही कहा कि मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, मेरे पास ऑलरेडी एक नारी है और वो मेरी बोट में आपने पैर रखा, वो भी नारी बन जाएगी, फिर मैं कैसे पार करूंगा, कैसे मेरा काम चलेगा, यही मेरा रोजी का साधन है। तो भगवान ने फिर कहा अच्छा ठीक है, सोई करो जो ही तब नाव न जाए, वही करो जिससे तुम्हारी नाव ना जाए, धो लो हमारे पैर। तो भगवान ने कहा पैर धो लो। और उससे पहले केवट ने कह दिया भगवान को, अगर आपको नाव पे नहीं जाना तो आप थोड़ा आगे चले जाओ, वहां पे पानी कमर तक का पानी है, आप उससे पार कर लोगे, मैं तो आप बोट में नहीं लेके जाऊंगा। तो भगवान ने फिर माता सीता की तरफ देखा, माता सीता कैसे पानी में जाएंगी। तो भगवान ने केवट को कहा अच्छा पैर धो। अब केवट पैर धो रहा है, तो वहीं पे गोस्वामी जी लिखते हैं कि जा सुनाम सुमिरत एक बारा, नर उतरहि भव सिंधु अपारा। जिन भगवान का नाम सुमिरन करने से, एक बार याद करने से जो मनुष्य हैं वो पूरा ये अपार समुद्र पार कर जाते हैं, भव सिंधु पार कर जाते हैं जिस भगवान के नाम से, वो भगवान सो कृपाल केवट ही नहीं हो रहा। वो भगवान केवट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज, राइट। और यहां तक कह देते हैं कि जेहू जेहू तिहू पग को जगह थोड़ा। उन्होंने जब भगवान वामन का अवतार लेकर आए थे, तो कहते हैं उन्होंने 3 स्टेप्स में पूरी पृथ्वी को, पूरी अर्थ को उन्होंने छोटा कर लिया था, राइट। तो वो भगवान केवट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं
कि हमें पार ले चलो। तो वही गजेंद्र जी कह रहे हैं यहाँ पर कि हे भगवान, आपकी जो माया है, आपकी जो लीलाएं हैं, जैसे एक नाटक में कोई एक्ट करता है, उस तरीके से आपकी लीलाओं को समझ नहीं पाते हैं। दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, चाहे वो ऋषि हो, चाहे वो मुनि हो, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर लीलास। तो फिर उन्होंने कहा कौन समझ पाते हैं? तो उन्होंने कहा जो आपकी लीला को समझ पाते हैं, हे भगवान, जो मुनि हैं, जो साधु हैं, राइट, और जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया है, जो घर छोड़ के वन में रह रहे हैं, मुनेयसु साधव, और वन में जाके वो क्या कर रहे हैं? वो सबसे पहले तो उनको इच्छा है, दिदृक्षवे, वो आपका चरण सुमंगल का दर्शन करना चाहते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज, फर्स्ट क्वालिफिकेशन इज, हमको इच्छा होनी चाहिए। अगर भगवान के चरणों के दर्शन करने की इच्छा है, तो दैट इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन। अब आप लोग यहाँ पे आए हो तो यू हैड ए डिजायर टू लिसन टू भागवत कथा, भगवान का ग्लोरिफिकेशन होगा। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ही इज सेइंग। बट उसके बाद वो कह रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं? चरंती लोक व्रत, आलोक व्रत। चरंती मतलब दे फॉलो, और दे फॉलो द वाउज ऑफ, नॉट ऑफ दिस लोक, आलोक। आलोक मतलब which is beyond the vows which can take you beyond this planetary system, जो आपको इस संसार सागर से बाहर ले जा सकता है। और वो फिर वाव कौन कौन से व्रत कह रहे हैं? जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। वो व्रत जो है, अभी जैसे इन्होंने, प्रभु जी ने भागवत सप्ताह का संकल्प लिया है, 7 दिन तक भागवत का कथा करेंगे। तो ये इस लोक के व्रत नहीं है। इस लोक के व्रत तो यहीं तक सीमित हो जाते हैं, एक घर बनाना है, एक गाड़ी लेनी है, ऑस्ट्रेलिया में पीआर लेनी है, यहाँ पे जाना है, हॉलीडेज के लिए गोल्ड कोस्ट जाना है। तो ये इस लोक के व्रत हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो आपको देखना चाहते हैं भगवान, वो आलोक व्रत करते हैं, मतलब परलोक के व्रत करते हैं। देयर वाउज आर able to take them to the parlok, to the beyond this creation, out of this material creation. और वो कैसे पालन करते हैं? How they follow those vows? Avranam, without failure they follow those vows, and they wander in the forests, right? Because they have the vows of parlok. I tell you, once there was this person who was living in Barsana, right? His name was Gajraj. So he was living in Barsana. बरसाना में कौन है? श्री जी, राधा जी का गांव है। तो वो वहां पे रहते थे। अब वहां पे रहते थे वो बरसाना में। तो he was not very rich, right? उनकी एक बेटी थी, बेटी घर का काम करती थी, ये छोटा बहुत जो लेबर का काम कर लेते थे। दिस इज अ ट्रू स्टोरी, आई एम टेलिंग यू। वो थोड़ा लेबर का काम करते थे, और जब टाइम मिलता था भगवान की कथा सुनते थे, और डेली शाम को श्री जी के मंदिर में दर्शन करने जाते थे। आप लोग में से बरसाना जो गए हो, आपने देखा होगा ऊपर जाके जो श्री राधा जी का मंदिर है वहां पर, है ना? तो रोज दर्शन करने जाते थे इस तरीके से, और साधु महात्माओं के साथ कथा सुनते थे। एक दिन वो गए वहां पर, तो वहां पे एक महात्मा ने उनको कहा कि कल मुझको नंदगांव जाना है, और क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? और उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसा तो है नहीं, सो दैट आई कैन हायर ए ट्रांसपोर्ट, लेकिन मेरा थोड़ा सामान है, क्या आप मेरी मदद करोगे? तो ऐसा उन्होंने उनसे कहा। तो गजराज ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, मैं सुबह सुबह आ जाऊंगा। तो उसने कहा थोड़ा जल्दी चलो, क्योंकि दोपहर में धूप हो जाएगी। धूप हो जाती है, आपने अगर वहां गए हो धूप में, तो बहुत तेज धूप होती है गर्मी दिन में, और चलना मुश्किल हो जाता है। तो ही डिड नॉट हैव इवन द स्लीपर्स, नंगे पांव भी चलते थे वहां पे। तो उस महाराज ने कहा कोई बात नहीं, मैं तो सुबह 4 बजे तैयार हो जाऊंगा। उसने कहा था 5 बजे, महाराज ने कहा नहीं, 5-4 बजे चल पड़ेंगे। उसने कहा ठीक है। अब वो सुबह सुबह, उसकी बेटी थी, बेटी का नाम था रतिया। उसने रतिया को बोला कि बेटी, मैं महात्मा जी को छोड़ने नंदगांव जा रहा हूँ, है, और जो है मैं थोड़ा जल्दी चला जाऊंगा, आप घर संभाल लेना। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो महात्मा जी के पास पहुंच गए 4 बजे, और उनका सामान उठा के चलने लगे। अब चलने लगे तो ये थोड़ा, गजराज थोड़ा जल्दी कर रहे थे कि इनको वापस भी आना था। लगभग 11 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आज के हिसाब से देखा जाए तो वॉकिंग डिस्टेंस, बाय रोड इट शोज, जीपीएस 11 किलोमीटर बताता है। तो उन्होंने कहा कि चलेंगे जल्दी। अब वो चल तो रहे थे जल्दी जल्दी, लेकिन महात्मा जी को खांसी हो रही थी।
Because he was coughing, so he could not walk fast. महात्मा, he was walking slow. अब गजराज को जल्दी हो रही थी कि जल्दी जल्दी वापस आना है। अब वो सुबह 4 बजे निकले थे और उनको वहां पे नंदगांव पहुंचते पहुंचते 11 बज गए। अब 11 बज गए तो गजराज को थोड़ा मन में तो हो रहा था कि मैं जल्दी चला जाऊं, लेकिन वो संत की सेवा कर रहे थे, महात्मा की सेवा में थे, तो उन्होंने कुछ शो भी नहीं किया और कहा भी नहीं, लेकिन उनके मन में ये था कि जल्दी से वापस आ जाऊं क्योंकि बहुत गर्मी होगी, और नंगे पांव गए थे। तो जब वहां पे गए तो वहां पे मंदिर में उन्होंने सामान रखा उनका, महात्मा जी का, और महात्मा जी ने कहा उनसे कि गजराज देखो 11 तो बज गए हैं, तू रुक जा, अभी 12 बजे आरती होगी और थोड़ा भोग होगा, तो थोड़ा प्रसाद लेके चले जाना, जलपान करके चले जाना। तो गजराज महात्मा जी के पैरों में गिर गया और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये जलपान नहीं कर सकता, आप मुझे जाने दो, मुझे देर हो रही है। तो महात्मा जी ने कहा क्या बात है, तुम नाराज हो गए? उन्होंने कहा मैं नाराज नहीं हो गया हूँ, मुझे एक्चुअली वापस जाना है। अब जब महात्मा जी ने ज्यादा इंसिस्ट किया तो कहते हैं गजराज ने कहा कि नहीं महाराज जी, आप मुझे क्षमा करें, मैं यहाँ स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? उन्होंने कहा मैं इसलिए नहीं स्वीकार कर सकता क्योंकि मैं लड़की वाला हूं। श्रीमती राधा रानी बरसाने की है और नंदगांव कृष्ण भगवान का है। उन्होंने कहा मैं लड़की वाला हूं, मैं लड़की वाला हूं, मैं कैसे, हाउ कैन आई एक्सेप्ट इवन अ ग्लास ऑफ वाटर बिकॉज आई हैव कम टू द बॉयज होम। यू सी, सो वो महात्मा इतने भाव विभोर हो गए, he became so emotional by hearing that. He said, even today you are following this vow. ये तो 5,000 साल पहले की बात हो गई, बट यू सी ये उनका ऐसा व्रत है। दिस इज द वाव। ही सेड इवन टुडे दे से बिकॉज आई एम फ्रॉम बरसाना, बरसाना राधा जी का गांव है और नंदगांव उनकी ससुराल हो गई, तो उन्होंने कहा मैं लड़की वाला हूं, हाउ कैन आई एक्सेप्ट इवन अ ग्लास ऑफ वाटर देयर। एंड देन महात्मा ने कहा ठीक है, अब आप जल्दी से वापस चले जाओ। एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग, एंड एज ही वाज वॉकिंग बैक, तो ही वाज, इट वाज ऑलरेडी सनी और बहुत गर्मी हो रही थी, और रास्ते में आते आते कहते हैं गजराज को चक्कर आने लगे, एंड ही ऑलमोस्ट फेंटेड, ही फेल ऑन द वे। और गजराज वहां पे गिर गए रास्ते में, कोई नहीं था केयर करने वाला। तो फिर भगवान कृष्ण ने देखा ये तो गड़बड़ हो गई, नंदगांव से वापस आए थे, तो कहते हैं भगवान कृष्ण ने फिर अपना आउटफिट चेंज किया। वही इसमें कह रहे हैं कि भगवान आपको नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? नटस्य, आप जो नट, एक नाटक करने वाले की जो आपका वो रहता है, जैसे नाटक करने वाले को हम नहीं समझ सकते, ऐसे ही एक साधारण पुरुष आपकी लीलाओं को नहीं समझ सकता। तो भगवान वहां पे पहुंच गए और भगवान ने गजराज को जगाया, एक गजराज उठो, गजराज उठो, थोड़ा भोग पालो, थोड़ा प्रसाद ले लो, कुछ खा लो। गजराज नहीं उठ रहा था। कहते हैं फिर भगवान कृष्ण राधा जी के पास गए और राधा जी को जाके बोला, बाय द वे आप ऐसा ना सोचें, आज भी वृंदावन में लीलाएं चल रही हैं, आज भी वहां पे लीलाएं चल रही हैं, सिर्फ हम लोग नहीं देख सकते, वी कैन नॉट सी, बट पीपल हु आर इन फुल डिवोशन दे कैन सी। तो उन्होंने देखा। अब कृष्ण भगवान आए, कृष्ण भगवान ने राधा रानी से कहा कि देखो तुम्हारा भक्त है वो तो, क्योंकि रोज श्री जी के मंदिर में जाके शाम को पूजा करते थे। उन्होंने राधा जी से कहा कि तुम्हारा भक्त है, चलो इसका, उसको जगाते हैं, उसको थोड़ा ठीक करो आप। तो राधा जी ने कहा क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि उसको भूख लगी है, उसको जलपान कराते हैं। तो वहां से कहते हैं राधा रानी ने एक प्लेट में भोग लिया है, और वेश कौन सा बनाया? उसकी बेटी का वेश बना लिया, रतिया का। और रतिया का वेश बना करके राधा रानी जी आई और उसको जगाया, गजराज को, और उसको जगा के बोला लो पिताजी, ये आप थोड़ा जलपान कर लो, और मुझे लगा आप देर हो गई है, आप इतनी देर से नहीं आई, तो मैं आपसे मिलने के लिए आ गई, आप उठिए, थोड़ा ये आप प्रसाद लीजिए। प्रसाद दिया उसको और उसको बोला गजराज को कि आप प्रसाद पाओ, मैं जल्दी जल्दी वापस जाती हूँ, घर में कुछ मेहमान आने वाले। अब गजराज जी थे, उन्होंने वहां पे थोड़ा प्रसाद पाया, लिया, उसके बाद घर आए, और घर आके उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि कहाँ है वो मेहमान, और तू तो बहुत अच्छे टाइम पे आ गई थी, है, मैं तो गिर ही गया था, अच्छा वो तू टाइम पे मेरे लिए भोजन लेके आ गई, और वो मेहमान कहाँ है, चल मैं उनसे भी मिल लेता हूँ। तो उस रतिया ने कहा कौन से मेहमान, विच गेस्ट आर यू टॉकिंग अबाउट। तो तब फिर उनको गजराज जी को रियलाइज हुआ, अरे ये तो स्वयं श्रीमती राधा रानी आई थी, तेरे ही वेश में आई थी बेटी, मैं तेरे पैर छू लेता हूँ, बिकॉज शी केम इन योर फॉर्म। तो इस तरीके से जो भगवान की लीलाएं हैं,
जो अलोक व्रत जो करते हैं, आप समझ रहे हैं, उनके जो वाउस हैं, कई बार यू सी दिस वाउस एज ऑर्डिनरी वाउस. लोग एकादशी करते हैं, दिस इज नॉट ऑर्डिनरी, दिस इज आलोक, बिकॉज इट कैन टेक यू आउट ऑफ दिस मटेरियल यूनिवर्स. आप समझ रहे हैं, ये जो भावसागर आपको इस बंधन से ये छुड़ाने के व्रत हैं. भागवत सप्ताह करना ये आपको इस भावसागर से छुड़ाने के वाउस हैं ये सब. इट इज नॉट इजी टू अरेंज प्रोग्राम फॉर 7 days इन योर हाउस, राइट. कितना अरेंजमेंट करना पड़ता है. तो वही गजेंद्र जी कह रहे हैं कि हे भगवान, पहले उन्होंने क्या कहा कि आपको देख नहीं सकते, राइट. यू कैन नॉट बी सीन. सीन क्या मतलब, उन्होंने कहा कि गतिम ईरी तुम, पहले तो आपको जान नहीं सकते, और बिकॉज आपको जान नहीं सकते, दे कैन नॉट इवन एक्सप्लेन. वो आपकी जो गति है, आपकी लीलाओं के बारे में बता भी नहीं सकते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है. लेकिन फिर पूछा गया कि कौन बता सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, जो मुनि और जो साधु और जो आलोक व्रत का पालन करते हैं, वो व्रत कैसे हैं, परलोक के वाउस हैं. who follow these vows. Vows are studying Srimad Bhagavatam, जैसा purport में कहा प्रभुपाद ने, but studying Bhagavad Gita, studying Srimad Bhagavatam, who are following these vows, only they can see you, only they can realize you, right? For others, it's not possible. Or you are very simple, right? Very simple कैसे होते हैं? अब जैसे एक बार कहते हैं एक शिकारी था, वो जंगल में जाता था शिकार करने के लिए. And every day when he was passing by, he will see a sadhu sitting there in the forest. उन्होंने एक बात कही कि साधवा है, भूतात्मा आत्मा, जो सुहृद हैं, people who are well wisher, और जो सबके अंदर आपको देखते हैं, वो आपके दर्शन कर सकते हैं, या जो सबके ऊपर कृपा करते हैं. तो this hunter asked this sadhu, why are you sitting here? He said, and every day he will sit there. Every day he will go, he will see that saint sitting there. And then he thought maybe he's hungry. He started offering him a fruit every day. And then one day he asked him, how long will you sit here? He said, I will be sitting here as long as I don't get to see the Lord. And then that hunter took a vow. He went to the forest and he said, how does your Krishna look? He told him, he said, Krishna looks, he is having a flute, he is having a peacock feather, right? And he is grazing the cows. That's how my Krishna looks. He said, okay, I will get him for you. Now hunter goes into the forest and he starts calling in the forest, oh Krishna, oh Krishna. Day 1, Krishna, nothing happens. Day 2, nothing happens. And the hunter stops eating. Hunter says, I have to serve this Mahatma. He's sitting there whole day for so many days, so many years. I need to serve him. And then hunter is calling for Krishna. 1 day pass, 2 day pass, 3 day pass. And hunter stop eating. Krishna is not coming. And then after some time, Krishna comes, but he comes in a different form. He doesn't come holding a flute. And he tells him, who are you? He introduces himself to the hunter. Hunter says, who are you? He said, I'm Krishna. He said, no, you are not Krishna. He said, that saint has told me Krishna looks like this, so you can't be Krishna. And then Krishna was testing his vow. And then after some time, Krishna disappears, and then he comes again in the same form that saint had described. He's holding a flute, he's got a peacock feather, he's wearing a pitambar. And then hunter bows down to him, and then he says, look, you were calling me and I have come. And then he says, what do you want from me? He said, I want you to take you to that saint. You have to come with me. Krishna says, no, I can't go like this. He said, no, you have to come. And by the time Krishna could say anything, hunter ने अपना जाल कृष्णा के ऊपर डाल दिया. He threw his net on Krishna. And he said, now I won't let you go out of the net. And he lifted the net on his back. And he goes in front of the saint and he throws the net down. He said, here is your Krishna, take him. And then the saint is like, wow, how did you find him? See? And then the hunter explains everything, that this is how, because I wanted to serve you, because you said he looks like this, and I prayed for him,
and I prayed for you, and he has come here. And then within a moment, Krishna disappeared, but the saint had the darshan. So that's what Gajendra is saying, that my dear Lord, you can only be seen. आपका दर्शन सिर्फ मुनि और साधु लोग कर सकते हैं, राइट? जो आपका भजन करते हैं, जो सुहृद हैं, जो सबको प्रेम करते हैं, जो सबके अंदर आपको देखते हैं. तो मेरे ख्याल से आज हम लोग यहाँ पे विराम देते हैं. It's almost 8 o'clock now, right? So this is verse number 7. Yeah. Didrikshavo yasya padam sumangalam vimukta sanga munyas sadhava charanti loka vrat avrinam vane bhutatma bhuta सुहृदय समय गति. वो भगवान मेरी गति हूँ, राइट, जो अलोक, इस लोक के जो व्रत नहीं है उनका पालन करने से मिल जाते हैं. तो स्टॉप हियर नाउ. प्रभु जी वी स्टॉप नाउ. तो अभी भागवतम जी की आरती होगी, तो आप सब लोग खड़े हो जाएं, और देयर इज अ लैंप देयर, यू कैन ऑफर द लैंप. प्रभु ये केक गजेंद्र जी का केक है? गजेंद्र जी का केक भी आज प्रभु ने अरेंज किया है. So we'll sing आरती. प्रभु एक शीट दे दीजिए. प्रभु you play this. तेरी भाव की है आरती, पापियों को पाप से है तारती. भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती. ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला.